السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ میں بی آر ایس پارٹی کو آج اس وقت ایک اور دھکا پہنچا جب اس پارٹی کے ایک اور رکن اسمبلی کے یادیہ بھی کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رنگا ریڈی ضلع کے چیوڑلہ اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے بی آر ایس پارٹی کے رکن اسمبلی نے دہلی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، دیپا داس منشی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ کے یادیہ کی کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد کانگریس میں شامل ہونے والے بی آر ایس کے ارکان اسمبلی کی تعداد 6 ہو گئی۔ اس سے قبل بی آر ایس پارٹی کے 5 ارکان اسمبلی نے وقفے سے کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے، جن میں سب سے پہلے خیرتاباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر ہیں۔ بعد ازاں ٹی وینکٹ راؤ، کڑیم سری ہری، پوچارام سرینواس ریڈی اور ڈاکٹر سنجے کمار شامل ہیں۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں واقع ایک لڑکیوں کے مدرسے میں کل رات کھانا کھانے کے بعد کچھ بچوں کی طبیعت بگڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق وجے واڑہ کے اجیت سنگھ نگر میں واقع ایم کے بیگ ہائی اسکول مدرسہ جامعہ ہدایت للبنات میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا۔ کل رات کا کھانا کھانے کے بعد 8 طالبات کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں آج صبح ایک طالبہ کی موت ہو گئی۔ طالبہ کی شناخت 17 سالہ کرشمہ کے طور پر کی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق دیگر طالبات کی حالت ابھی بہتر ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ فوڈ سیفٹی حکام اور ڈی ایم ایچ او کی جانب سے مدرسے کا معائنہ کیا گیا، جہاں تقریباً 100 کلو گوشت ملا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گوشت عید الاضحیٰ کے موقع پر کی گئی قربانی کا تھا، جسے فریج میں رکھا گیا تھا۔ نرمل ضلع کلکٹر ابھیلاش ابھیمنیو نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈرائی ڈے پروگرام کو منظم طریقے سے عمل میں لاتے ہوئے موسمی بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آج صبح بلدی حدود کے اسرا کالونی شانتی نگر کا انہوں نے دورہ کرتے ہوئے کہا کہ بارش کا پانی جمع ہو جانے سے گندگی کو روکنے کے لیے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دیں۔ گندے پانی کی وجہ سے ملیریا اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ مچھروں کی وجہ سے موسم بارش میں ان بیماریوں کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ موسمی بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جائے اور ہر ہفتہ ڈرائی ڈے کا انعقاد عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے شہریوں کو بھی مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کے پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بارش کا پانی گھروں کے ارد گرد جمع نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات ضروری ہیں۔ ابھیلاش ابھیمنیو IAS پنچایت راج، طبی اور بلدی حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ شہری اور دیہی علاقوں میں صاف صفائی کے خاطر خواہ اقدامات کریں۔ اس پروگرام میں صدر نشین بلدیہ، ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر، اراکین بلدیہ و دیگر شامل تھے۔ آنکھوں کے علاج کی ماہر ڈاکٹر پلوی گپتا نے بتایا کہ آدیہ آئی کیئر کی جانب سے 1 جولائی تا 6 جولائی مفت آئی کیمپ سیکنڈ فلور کینرا بینک گاندھی نگر میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کم قیمت پر چشمہ بھی فروخت کیے جائیں گے۔ اوقات صبح 10 بجے تا شام 6 بجے تک رہیں گے۔ ڈاکٹر پلوی گپتا نے بتایا کہ خواہش مند افراد اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رجسٹریشن کے لیے 04027628172 یا 8688810329 پر اپنا نام رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر کو ریاستی وزیر انچارج سیتا کاکا 30 جون کے روز دورے کے سلسلے میں آج مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ کی ہدایت کے مطابق میونسپل کمشنر ایس انجیہ، مشن بھگیرتا ڈی سرینواس اور سابقہ کونسلر سرینواس کے ساتھ مل کر میونسپل کمشنر نے ریاستی وزیر کے پروگرام سے متعلق صاف صفائی کے انتظامات کی ہدایت دی۔ کانگریس پارٹی میں ایک دوسرے کے چاہنے والے حامیوں کی جانب سے جگہ جگہ فلیکسیاں۔ شہر میں کانگریس پارٹی MLC جیون ریڈی کے حامیوں نے ضلع کے مرکز نئے بس سٹینڈ چوراہے پر جیون بولے تو جگتیال اور جگتیال بولے تو جیون کے فلیکسیاں نصب کیے، تو وہیں پر رکن اسمبلی سنجے کمار کے حامیوں کی طرف سے جگتیال حلقے کی ترقی کے لیے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے پر رکن اسمبلی سنجے کمار کو مبارکبادی کے فلیکسیاں نصب کی گئیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر کے اندیولی گاؤں سے گزرنے والی ندی پر پل نہ رہنے کی وجہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانوروں کا ایک بڑا گروپ ندی عبور کرنے کے دوران اچانک ندی میں پانی آ جانے پر جانوروں کا مندہ پانی میں بہہ گیا۔ اس موقع پر مقامی عوام نے ندی پر جلد سے جلد پل تعمیر کرتے ہوئے عوام کو سہولت فراہم کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔
सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन के मुताबिक बोधन शहर के मदाफात में वाक़े देही इलाके अचनपली के एक मकान में खुफल तकनीक के जरिए सरक़ी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक साहिब खाना अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने शहर हैदराबाद रवाना हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ वापस घर लौटने पर उनके मकान का दरवाज़ा खुला पाया। मालिक मकान के मुताबिक घर में मौजूद 12 तोले तिलाई ज़ेवरात, 30 तोले चांदी और 40,000 नक़द रुपए चोरों ने सरका करके फरार हो गए। घर में नस्ब CCTV कैमरे में सरक़ी की वारदात रिकॉर्ड हुई। सरका 18 जून की शब अंजाम दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर वीरैया ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जिले के भी आसिफाबाद के उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला सदर मिर्जा सलीम बेग जर्नलिस्ट, जिला जनरल सेक्रेटरी माजिद इकबाल और उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन स्टेट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल जमील के जेर निगरानी मकामी उर्दू सहाफ़ियों मुनव्वर, मुक़फ़्फ़म अहमद, फयाज अहमद, सैयद इकबाल के साथ मिलकर उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन का वफद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS से मुलाकात करते हुए मंडल सतह खिदमात अंजाम देने वाले उर्दू जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मंजूरी और रिहायशी अराजी डबल बेडरूम की मंजूरी करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई करने का तयक़ुन दिया। आज लोकसभा में नीट पेपर लीक के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन पेपर लीक पर फौरी बहस का मुतालबा कर रही थी, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने मंजूर नहीं किया। ओम बिरला ने साफ लफ्जों में कहा कि जब आपको सदर के खिताब पर बोलने का वक्त दिया जाएगा तब आप इस पर तफसील से बात कर सकते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि अपोजिशन अरकान पार्लियामान का हंगामा जारी रहा और बिलाखिर स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई पीठ तक के मुलतवी कर दी। रियासत कर्नाटक में आज सुबह रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में 13 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। यह हादसा रियासत के हावेरी जिले में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर पेश आया। महलूकीन में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि हादसे में दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस जो पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे से गुजर रही थी बेकाबू होकर सड़क पर खड़े ट्रक से अकबी सिम से टकरा गई। हादसा इस कदर भयानक था कि बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। मालूम हुआ है कि हादसे में हलाक होने वालों का ताल्लुक शिवमोगा से था और वो बेलगावी से दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। झारखंड के साबिक वज़ीर आला और JMM लीडर हेमंत सोरेन को जुमा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमीन घोटाला से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर 3 दिन की बहस और समाअत मुकम्मल करने के बाद 13 जून को अपना फैसला महफूज कर लिया था। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ED ने 31 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM लीडर सोरेन को गिरफ्तार किया था। इस वक्त सोरेन रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। ED का कहना है कि हेमंत सोरेन के बारियातू में 8.86 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है। अगरचे हेमंत सोरेन का नाम इस जमीन के दस्तावेजात में दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर नाजायज कब्जा PMLA के तहत जुर्म है। दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान बारिश की वजह से दिल्ली में वाक़ई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की भारी भरकम छत का बड़ा हिस्सा और पिलर्स मुनहदम हो गए। इस हादसे में जहां कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं 6 अफराद जख्मी बताए गए हैं जो गाड़ियों में सवार थे। NRC में मानसून की पहली बारिश की वजह से जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली, वहीं उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया। जुमा की सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कें ज़ेरे आब आ गई और दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। अलावाजी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसकी जद में कई गाड़ियां आ गई। इस दौरान 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मिली है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट छत मुनहदम वाक़े की शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। इमदादी टीम मकाम वाक़े पर सरगर्म है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट की, जिसमें नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सवालात उठाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी हुकूमत के पिछले 10 सालों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के लिए बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरना, अयोध्या की नई सड़कों की खराब हालत, राम मंदिर में पानी का बहाव
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, बिहार में 2023 और 24 में 13 नए पुल, प्रगति मैदान टनल गिनने को है। प्रगति मैदान टनल का बार बार डूबना, गुजरात में मोरबी पुल गिरने का सानेहा, ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो मोदी जी के आलमी मेयार की बुनियादी ढांचे की तामीर के बुलंदो बांग दावों को बेनकाब करती है। दिल्ली में जुमेरात की रात सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह पर हमला करने वाला मरकजी वजीर बंडी संजय और मलून रुकने असेंबली राजा सिंह का हामी निकला, जिसने गुज़िश्ता रात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह पर उनके नाम की तख्ती पर इसराइल की तायीद में पोस्टर लगा दिया और पथराव किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी शिनाख्त बीजेपी के सरगर्म कारकुन विनोद के तौर पर हुई है, जिसने ये हरकत की। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद के कौमी दारुल हुकूमत में वाक़े क़यामगाह पर हमले के बाद अशरार ने उनके मकान के गेट और बोर्ड पर इसराइल की तायद में पोस्टर लगाए। हमलावरों ने सदर मजलिस के घर पर आई स्टैंड विद इसराइल के पोस्टर लगाए और उन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सदर मजलिस की क़यामगाह पर लगाए गए पोस्टर्स पर हिंदी ज़ुबान में लिखा है, भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी की अहलियत मनसूख की जाए। सदर मजलिस की क़यामगाह पर हमले के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग एक रुकने पार्लिमान के क़यामगाह के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, तो पुलिस को कैसे इस बात का इल्म नहीं होता? बर वक्त पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची? वाज़ेह है कि फ़लस्तीन की हिमायत में नारा लगाने के बाद से ही बीजेपी के अरकान व कायदीन सदर मजलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे थे। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में जंगली जानवर मुंतकिल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त दिलेश कुमार मुतवत्तिन एलूर रियासत आंध्र प्रदेश के तौर पर की गई है। उसके पास से जंगली खिंजीर और बोलेरो गाड़ी जब्त कर ली गई। दरअसल मुलजिम जंगलाती इलाके से जंगली खिंजीर का शिकार करके रियासत आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर रहा था। बाज़ से मिली इत्तलात के बाद अहदेदारों ने ताक़ुब करके उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद हाजिर अदालत किया गया। फाजिल मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन के लिए अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुलजिम को निर्मल जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये कार्रवाई FRO राठौड़ रमेश, डिप्टी FRO मोहम्मद इरफान ने अंजाम दी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।